You have Bengal was a very, very rich province, and no doubt about it. In the 17th century, 18th century के first half तक Bengal was the economic powerhouse of India. मतलब आज के दिन में when you think of any industrial state, it could be Bombay area, तमिलनाडु etc. इससे कई गुना ज्यादा Bengal was industrialized in 17th 18th century. And it was the economic powerhouse not only of India, but also of entire Asia and perhaps the world. Before industrial revolution, handcraft. We have Bernier, who visited India in the high time of Mughals. उसका quote है, the rich exuberance of the country has given rise to a proverb in a common use among the Portuguese, English and Dutch, that the kingdom of Bengal has 100 gates open for entrance, but not one for departure. यहाँ जो आता है यहीं सब रह जाता है, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाता. It attracts so many things. यहाँ से कोई जाना नहीं चाहेगा. बंगाल was actually जो आप कहते सोने की चिड़िया जो कहा जाता है ना, was it applicable for entire India? Perhaps not all the regions. It was definitely applicable for Bengal, सोने की चिड़िया. कोई डाउट ही नहीं है. 17th century, 18th century. Now, in the context of this economic powerhouse, you have to understand how the politics is changing. And we have discussed already that after the end of Aurangzeb, when Mughals are declining, we have the Murshid Quli Khan and all restructuring. हमने वो देखा हुआ है. He combined Nizami and Diwani and create Nawabi, became autonomous. Remember this, अपना पहला lecture. We come back to this story. Parallelly, in Bengal, जब मुर्शिद कुली खान साहब है, he is at the upper reaches of Hooghly River. His capital was shifted from Dhaka to Murshidabad. And south of Murshidabad, very close by, is Qasim Bazar. It was a great market. So I have a map here, like this. Murshidabad and Qasim Bazar, very close by. But in the lower reaches of Hooghly River at that time, you have all these places of different European factories, different locations. The oldest one, Portuguese, came in Bandel, Hooghly. You have Dutch in Chinsura, उनके लगभग 100 साल से ऊपर के बाद 1656. French came in 1673 in Chandarnagar. British, Job Charnock, supposedly established in 1690 Calcutta. We have seen the story also. And then in the end, Danish people also came in Serampur. वो आज भी है. Serampur की प्रेस बड़ी फेमस है. So these places, Hooghly, Chinsura, Chandarnagar, Calcutta, Serampur. So this part, in that era, because we used to travel via ships, boats. तो बोट से माल लेके यहाँ से आ जा सकते थे. तो अगर बोट से यहाँ जाने को निकलोगे आप ऐसे इस तरफ, यू ट्रैवल दिस मच, इट्स हार्डली 30, 40, 50 किलोमीटर्स, नॉट मोर देन दैट. एवरी 5-10 किलोमीटर्स यू गेट वन सिटी, वन टाउन. जो किनारे से देखोगे वहाँ पे अंग्रेज फैक्ट्री है, यहाँ पे फ्रेंच फैक्ट्री है, उनका आर्किटेक्चर है, उनके झंडे है, उनके बोट्स है. इट इज लिटिल यूरोप. इट वॉज कॉल्ड लिटिल यूरोप. दिस पार्ट, दिस लिटिल यूरोप. So, and all these companies are constantly competing with each other fiercely. Why? Mercantilism, monopoly, business and profit. So the fierce competition in Bengal among various European companies. इसका फायदा किसको हो रहा है? बंगालियों को हो रहा है. वहाँ के व्यापारी, वहाँ के एजेंट्स, वहाँ के क्राफ्ट्समैन, टेक्सटाइल प्रोड्यूसर, they are getting silver, they are happy. Let them compete. So in competition, a lot of new forms were also invented of business. For example, one form was called as Dadan. It's a Farsi word, Dadan. So Dadani. It means advance. What does it mean? I am an English person and I don't know the countryside well. I don't speak Bengali. You are my agent. Agent is called Gumasta. Gumasta. And you know the countryside, you can speak both languages. You are Dubashi bhi ho. Dubashi mane, who can understand do bhashaएं, two languages. You speak English and Bengali and perhaps Farsi also. Farsi was the lingua franca anyway. Now, what used to happen is that you would go to a village, you know all the local craftsmen there, and you will tell them, ki, bhai, I want to buy
10 kg का कपड़ा, बट आई वॉन्ट टू बाय दैट कपड़ा ऑफ स्पेसिफिक क्वालिटी, स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक टेक्सचर, स्पेसिफिक साइज ऑफ धागा, स्पेसिफिक शेप, सब कुछ। अब वैसे तो बना नहीं होगा, सो व्हाट विल डू, भाई तू पैसे एडवांस में ले ले, आई लॉक यू, बाकी पुर्तगीज और डच आने से पहले तो मेरे पैसे ले ले, इस पैसे से माल खरीद, और खरीद के फिर यू, आई विल कम बैक टू आफ्टर 3 मंथ्स, मैं सारा खरीद लूंगा तेरे से, एडवांस अभी ले ले। सो यू लॉक द इंडिविजुअल क्राफ्ट्समैन बाय गिविंग एडवांस एंड टाई देम टू यू, दैट इज कॉल्ड एज दादन। दिस एजेंट, ताकि कंपटीशन में आपको आगे जाना, यू वांट टू एंश्योर क्वालिटी, यू वांट टू अश्योर सप्लाई, एंड यू वांट टू compete विद अदर्स। ये तीनों चीजें, दिस इज हाउ मोनोपोली वर्क्स, है ना। सो दिस इज कॉल्ड दादनी। आई विल गो, थोड़ा सा मैं आगे जाके बता दूंगा इसका फ्यूचर में क्या होगा, आई एम गोइंग अहेड ऑफ माई टाइम, बट दादनी के साथ बताना बड़ा आसान है। ठीक है, आफ्टर प्लासी बक्सर बाद में क्या होने वाला है इन दादनी सिस्टम। तो इस दादनी सिस्टम में होता क्या है, दैट यू आर अ क्राफ्ट्समैन एंड an English person approaches you, a French person approaches you, Portuguese approaches you, Dutch approaches you. You can choose कौन अधिक दाम देगा। It's a seller's market. You are selling textile and you dictate the terms. फायदा है, let them compete. It's good for Indians. लेकिन इसकी एक स्टेज आगे जाते हो, आगे जाके होता क्या है, लेट अस से इंग्लिश ओनली और एवरीबॉडी, दे स्टार्ट क्लेमिंग कि भाई ये सब तो ठीक है, बट यू आर नॉट डूइंग गुड वर्क। समटाइम्स बरखा नहीं आई, आपने काम नहीं किया, घर में मर गया, टाइम पे काम नहीं हुआ, डिड नॉट गेट इनफ कॉटन, धागे की क्वालिटी कम थी, मे बी आपने सारे कपड़े दे दिए बट क्वालिटी वॉज इनकंसिस्टेंट, इसमें रंग थोड़ा लाल की शेड अलग है, इसमें शेड अलग है, आपने कच्चा माल अच्छा यूज नहीं किया, वॉट एवर, लॉट ऑफ रीजन्स वेर देयर ऑफ डिले एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी एक्सेट्रा। तो एक काम करो यार भाई, देखो ये सारा कच्चा माल मैं इधर को देता हूँ, मुझसे खरीद, उससे क्या होगा, आई कैन गारंटी द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। सो ठीक है, सेकंड स्टेज आ गई, that the agent themselves started to provide all the कच्चा माल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या होगा, यार कच्चा माल भी मैं ही दे रहा हूँ, माल भी मैं ही खरीद रहा हूँ, तेरा क्या है, तू कौन है, आर यू बिजनेसमैन, एक काम कर, मैं इतना दूर आऊं कि तेरे गाँव, तू एक काम, तो शहर आ जा, मेरे फैक्ट्री में काम कर, मेरा ही कच्चा माल है, मुझे ही खरीदना है, तू तो ऐसे भी फिर क्राफ्ट्समैन नहीं है, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट पर्सन एनी मोर, यू आर नौकर, आ जा। और यहाँ आने के बाद जो हथियार है, तेरे इंस्ट्रूमेंट्स, अप्लायंसेस, वर्किंग, मैं तेरे को दूंगा। मतलब उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, वो craftsman got reduced to a knocker. Neither craftsman controls the raw material, nor he owns his own tools, nor he can decide what to make, nor he can decide whom to sell, nor he can decide at what cost to sell. तो ये जो कन्वर्जन हुआ है फ्रॉम दादनी सिस्टम, इन इंग्लिश वी कॉल इट पुटिंग आउट सिस्टम, ग्रेजुअली टुवर्ड्स, ये कैसे होगा, कौन ऊपर आ गया, द पर्सन हु हैड कैपिटल, एंड कौन नीचे चला गया, the one who was actually doing labor. So capital sat on the head of labor through this process. It's a very typical Marxist theory, but यहाँ पे ये लागू होती है, from putting out Dadni system to this. I'll give an example, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपके सामने बता रहा हूँ मैं। लेवल अप हमने शुरू करी 2020 में, जस्ट ड्यूरिंग कोविड, 5-6 साल पहले। Before that, we used to work at different places. I used to teach in Vajiram, Santosh sir in other class, Karan sir in some other class, etc. हम सब साथ में आए, लेवल अप शुरू हो गया उस समय, फॉर वेरियस रीजंस। उस समय शुरू करना आसान था, ये टीवी ये आता है 4-5 लाख का, ठीक है, उससे बड़ा हो तो और महंगा आ जाता है। यहाँ पे रेंट है, यू वुड नॉट बिलीव रेंट कितने लाखों में है, इफ आई टेल यू द नंबर्स। अब हो क्या गया है, नाउ आई हैव टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड गेट सब्सक्राइबर्स, फॉर दैट आई नीड टू हैव दिस, पहले कैमरा नहीं होता था, वेबसाइट नहीं होती थी, टीवीज नहीं होते थे, रेंट इतना नहीं होता था। तो एनी इंडिविजुअल टीचर, इफ द टीचर वांट्स टू स्टार्ट, टीचर इज अ लेबर, जैसे ये लेबर है, यहाँ पे क्राफ्ट्समैन है, टीचिंग इज अ क्राफ्ट। I could have started my class anytime for point of time, आज से 5-10 साल पहले, I had freedom.
इन लास्ट 5-7 years व्हाट हैज हैपेंड? वीसी मनी आ गया है. वीसी मनी माने वेंचर कैपिटलिस्ट मनी. Things have become more technology intensive and capital intensive. अब टीचर्स क्लास शुरू नहीं कर सकते. दे कांट सर्वाइव. दो लोग मिलकर नहीं. अब आपको कैपिटलिस्ट मैनेजमेंट, वीसी मनी, ये लोग आईएम के लोग क्लास शुरू करेंगे. बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज बिकम सच अ कॉस्टली थिंग. कैपिटल कॉस्ट हैज रिजन टू सच अ लेवल इन द कंपटीशन. ये होगा ही नहीं. द थिंग दैट हैपेंड हियर आज से 250-300 साल पहले इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अवर आईज इन कोचिंग इंडस्ट्री राइट नाउ. Teacher or labor who are getting disempowered. Capital is one which is deciding and calling shots. Marx कुछ कुछ केसेस में एप्लीकेबल अभी भी है. यू कांट डिसमिस मार्क्स कंप्लीटली. ठीक है. एनीवे, तो लेट मी डिस्कस वन मोर थिंग. हैव यू हर्ड ऑफ वर्ड मोनोपोली? व्हाट इज मोनोपोली? करेक्ट. वन सेलर and buyers don't have any choice. So one seller है and you have multiple buyers. It is called monopoly. यहाँ पे टेक्निकली मोनोपोली क्राफ्ट्समैन की है. कम सेलर्स है एंड दे कैन डिसाइड व्हिच वन विल हु विल बाय माय मटेरियल. ऐसे एक सेलर है नहीं, बट दे हैव चॉइस टू, दे कैन डिसाइड. इसलिए बोल रहा हूँ मैं. उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो अंग्रेजों का एजेंट झक मार के आ ही जाएगा आपके पास. व्हाट इफ इट इज रिवर्स्ड? यू हैव, yes, we have one buyer and multiple sellers. It is called monopsony. It's exactly opposite. One buyer, multiple sellers. For example, any example of monopsony today in India? डिफेंस. मुझे टैंक्स खरीदने हैं. भले 10 कंपनियां खरीदेगी भारत सरकार, और कोई खरीदेगा ही नहीं इंडिया में. तो मोनोप्सोनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टू बाय सर्टेन कमोडिटीज. राइट, इट्स मोनोप्सोनी. नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? ए ब्रिटिश इनिशियली गो हियर फ्रॉम दिस सिस्टम. वो कहते हैं कि भाई हमने बाकियों को तो हरा दिया वॉर में. नाउ वी आर द ओनली पीपल हु आर गोइंग टू बाय योर कमोडिटी. नोबडी एल्स कैन बाय. वी आर द ओनली बायर. मतलब हमने क्या बना दी? मोनोप्सोनी. बाय फिनिशिंग द कंपटीशन ऑफ फ्रेंच एंड डच एंड डैनिश, उनको हटा हटा के बस हम खरीदेंगे माल और कोई नहीं खरीदेगा. दैट इज व्हाट दे अचीव विद इन नेक्स्ट 20-30-40 years. मोनोप्सोनी अचीव कर दी. एंड even the craftsman has no option because he is taking advance. He has to buy things from the same agent. उसी से कपास लेनी है, उसी से धागा बनाना है, उसी से रंग लेना है, उसी से एडवांस लेना है. तो वो हो गई मोनोपोली ऑफ दैट सेलर. द एजेंट इज बोथ सेलर एंड बायर. समझ में आ रहा है? So what British did very smartly through the agentic system is that they established their monopoly and monopsony over Bengali craft industry. तो फिर आप खाओगे क्या? लोगों ने किया. इसलिए मैं आपको पता है अंगूठे काटने की कहानी बताई थी ना. लॉट ऑफ क्राफ्ट्समैन रजिस्टर्ड. कहानी है, इट मे बी मिथ ऑल्सो, मे बी रियलिटी ऑल्सो, दैट दे कट देयर थम्स. भले हमारी आर्ट खत्म हो जाए, हमसे खाना, हम भूखे मर जाएंगे, आपके लिए नौकरी नहीं करेंगे. ये किया है लोगों ने, बट सारे लोग नहीं कर सकते. परिवार है, खाना खिलाना है, जमीन तो है नहीं, क्या करोगे? काम तो करना पड़ेगा. So my point is, what British did is they established monopoly and monopsony both. And once that is done, the craftsman has no option but to become slave. Almost practical level पे it's a slavery. ठीक है, it's just a background. But ये सब monopoly, monopsony तब हो पाएगा when the competition is completely finished. And finish कैसे होगी? Through Plassey and Buxer. So ये प्लासी बक्सर के बाद होगा. अभी तो हम वहां पे हैं बंगाल में इन 1710, 1720, 1730, जहां पे देयर इज हाई कंपटीशन एंड देयरफॉर देयर इज
prosperity.